हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीषा, वेलकम टू द डायमंड कोचिंग। इससे पहले हमने डिस्कस किया था 2020 के क्लैट के प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें हमने 3 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है और आज हम लॉजिकल रीजनिंग के 4th पार्ट को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द 4th पार्ट विच इज स्टार्ट विद द पैसेज नंबर 24। तो आइए इस पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज नंबर 24 जो है ये सीबीएसई के मार्क्स के बेसिस पे स्टूडेंट्स का क्या क्राइटेरिया होता है, उनकी सक्सेस रेट और जो भी ड्रॉबैक्स हैं वो बताता है। तो पढ़ते हैं। डोंट मिस द क्लाउड बिहाइंड द सिल्वर लाइनिंग। द क्लास 12 सीबीएसई पास रिजल्ट हैज स्कोर टू एन ऑल टाइम high of 88.8%. The number of students scoring 95% and above has more the double. If only these higher marks were a reflection of student getting more skilled and more competitive, instead the odds are they simply mirror an assessment scheme relax compensate student for the many disruption originating in the pandemic. The goal of reducing students' stress level during this turbulent time is excellent and laudable, but it is a fallacy that high marks can accomplish this by themselves. The real stressor, after all, is shortage of opportunity. मार्क्स से ज़्यादा हमारे पास अगर कोई स्ट्रेस ज़्यादा है तो वो है हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कम है। दैट इज when every about of grade inflation raise cutoff for higher education even higher, it is no score that India's gross enrollment ratio is only 27% compared to Indonesia 36%, Thailand 49% and US is 88%। enrollment rate में ही हम कितने कम है, that is हमारा रेशियो कितना है 27%। is just one measure of tool taken by our failure to build adequate college and universities. License continues to suppress autonomy and expression in these sectors. For example, a new national education policy is reportedly mulling at least 20% of students being able to attend private higher education institution through freeship and another 30% through scholarship. Beside the fee caps on top of the stasis already raked by reservation, this would be disastrous, browbeating the private sector to make up for public sector deficiencies is counterproductive, as the pandemic has underlined key role of good government service in the healthcare, so too is raising the standard of underlying public funded school and universities essential. What the student need is an ecosystem when prospects alone that will be the best alleviative student stress. Meanwhile, cruddy shopping Celia will only worsen their and should be reconsidered. यहाँ पे देखिए हम जितने भी पैसेजेस को पढ़ रहे हैं वो हैं हमारे क्या है, जितने भी पैसेजेस हमने पढ़े हैं इनमें हमने देखा है 2020 जो जस्ट पैंडेमिक का ड्यूरेशन था। पैंडेमिक के बाद इन्होंने क्या किया, उस ड्यूरेशन में जितने भी क्वेश्चन पूछे मैक्सिमम उन्होंने किससे डील किया है, पैंडेमिक से। तो आप करंट सिनेरियो को फॉलो करें नेक्स्ट पेपर के लिए। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है यहाँ पे क्लैरिकल एरर है और इसकी वजह से ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। यहाँ मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट इज द क्लाउड बिहाइंड द सिल्वर लाइनिंग इन द पैसेज अबव। तो इसके पीछे इसके ऑप्शन है कि जो पैसेज दिया है उसमें सिल्वर लाइनिंग क्या है, क्लाउड बिहाइंड द सिल्वर लाइनिंग कितने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है द pandemic which is impacting the current education system. Second option, that is the governmental educational institution are not able to deliver quality education. Third option है
scoring higher marks or percentage in school education does not guarantee skilled and competitive candidature of a student. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है कि लाइसेंस राज हैज नेगेटिवली इम्पैक्ट हायर एजुकेशन। तो जैसा कि हमने पैराग्राफ में देखा था, हमारी फर्स्ट लाइन ही थी कि हायर मार्क्स को स्कोर करने से हमारा कैंडिडेचर बेटर नहीं हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 दैट इज which of the following statement weaken the argument that chopping the syllabi in the times of pandemic will only worsen a student's disorientation and hence should be reconsidered। यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है that is it does not matter even if syllabi is chopped, the student who don't want to study will even not study in the minimal syllabi structure even during the pandemic। सेकेंड ऑप्शन है स्टूडेंट डोंट केयर अबाउट syllabi, they study only for the mark and grade। थर्ड ऑप्शन है reduced syllabi will help in achieving the teaching learning target in due time and hence won't put pressure on the student। फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द above। इसमें से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और ये बात जो है ये हमारे पैराग्राफ में ऑलरेडी मेंशन है और हमें पैराग्राफ से ही इसका करेक्ट ऑप्शन पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग 95% above in class 12 board exam has more than doubled। which of the following statement serves as plausible explanation of this for the same। इसमें से कौन सा पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है? दैट इज फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट हैव स्टार्टेड स्टडीइंग विद सिंसियरिटी एंड कंसंट्रेशन। सेकंड है evaluation of the answer script has become liberal, and third option is question papers these days are easier to solve। fourth option is all of the above। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है all of the above। इसमें 95% above क्लास अगर किसी के भी मार्क्स आ रहे हैं तो इसके ये तीनों रीजन हो सकते हैं कि स्टूडेंट जो है वो सिंसियरिटी से क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है। दूसरा है कि इवैल्यूएशन मेथड जो है वो थोड़ा सा टफ नहीं है, इजी है। और थर्ड है कि क्वेश्चन पेपर जो है उसे हमने इतना इजी बनाया कि उसे सॉल्व करना आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 119 फॉर डेवलपिंग a student friendly ecosystem of education which of the following serve as a need of the hour। प्रेजेंट टाइम में ऑथर के अकॉर्डिंग इकोसिस्टम जनरेट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? पहला है इंक्रीजिंग द सिलेबी इन द स्कूल एजुकेशन, एंड सेकंड है बिल्डिंग एडिकेट नंबर ऑफ पब्लिक कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। थर्ड ऑप्शन इज एलिमिनेटिंग रिजर्वेशन इन एडमिशन टू द हायर एजुकेशन सिस्टम। फोर्थ वन इज क्रिएटिंग अ क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। इसमें से दो चीजें आती हैं जो हमें अगर इकोसिस्टम फ्रेंडली इकोसिस्टम जनरेट करना है तो चाहिए होते हैं। वो है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज बिल्डिंग एडिकेट नंबर ऑफ पब्लिक कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अगर अच्छा बनाना है तो। दूसरा क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम को, और ये दोनों बात हमारे पैराग्राफ से क्लियर होता है, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी inferred from the passage above। इसमें से कौन सा पैसेज से पता चलता है? फर्स्ट है स्कोरिंग हाई मार्क्स इन द क्लास 12 कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट इन द टाइम ऑफ द पेंडेमिक। आपने पैराग्राफ में पढ़ा था। नेक्स्ट हाई कट ऑफ ऑफ मार्क्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन रिड्यूसिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट। थर्ड है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन शुड नॉट बी रेगुलेटेड। फोर्थ है दैट इज लाइसेंस राज शुड बी डन अवे विथ। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, दैट इज हमारा जो क्या है, हाई मार्क्स होते हैं वो अपॉर्चुनिटीज को कम कर देते हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके पैराग्राफ में दिया हुआ है कि द मेन गोल बिहाइंड रिड्यूसिंग द स्टूडेंट स्ट्रेस क्या होता है, तो उससे ये आंसर क्लियर होता है।
नेक्स्ट आते हैं, ये सारे जो लास्ट के पैसेजेस हैं ये डायरेक्ट आपके पैसेज से ही सॉल्व हो जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन है, तो आपको इसमें पैसेजेस को ध्यान से पढ़ना होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है passage number 25, that is, if anything the novel coronavirus disease pandemic has taught us to rethink our lifestyle and question our need to travel to work। ठीक है, यहाँ पे travel to work every day, ये वाला जो पैसेज है ये बात करता है कि फर्स्ट हमें कोविड टाइम में घर में रहना पड़ा था, जिसकी वजह से हमें अपना काम क्या करना पड़ा था, वर्क फ्रॉम होम हो गया था, हमारे सबके काम हो गए थे, इवन स्कूल्स तक बंद थे। तो इसने ये सोचना बताया कि हमारे लाइफ को हमें रीथिंक करना चाहिए कि अगर हमें ट्रेवल ना करना पड़े तो क्या होगा। अब देखते हैं, आफ्टर ऑल इन द एज ऑफ इंटरनेट जूम, अभी हम इंटरनेट के एरिया में हैं, जूम मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, वेबिनार कैन बी वर्चुअली कंडक्टेड, फिजिकल डिस्टेंसिंग इज पॉसिबल, अ लार्ज नेचर ऑफ वर्क इन सिटीज इज ऑफ टर्शियरी नेचर, अ मेजर पार्ट ऑफ which can be done from home. This can affect the way of offices function and reduces the need for all employees can be physically present every day. ठीक है, information technology companies are already contemplating a move of making many of its employees work from home. इससे पहले भी कोविड-19 से पहले भी जितनी भी आईटी सेक्टर की जो कंपनीज होती थी वो ऑलरेडी अपने काम को क्या करती थी, वर्क फ्रॉम होम, कुछ एम्प्लॉय उनके वर्क फ्रॉम होम करते थे काम। एंड मेक दिस अ न्यू नॉर्मल, मोर फर्म्स फॉलो सूट, द नीड फॉर ह्यूज office building and central business districts would change. Apartment cannot get bigger at the same rate and people may not have the space or atmosphere to work from home. ठीक है, बट इसका एक ड्रॉबैक भी है कि इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि आपको क्या हो सके, आपको वर्क फ्रॉम होम करना है और आप अपने घर पे वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाओ कि आप पीसफुली अपने काम को कंप्लीट कर सको। तो this would mean that more people would opt for co-working space close to their homes. This could be a game changer, for it would provide the cities to better distribute their activities throughout the space and rid themselves of the ideas of zoning. Only a handful of professionals are allowed to function from residential zone, including doctors, lawyers, architects. This needs serious rethinking. Many more professions of similar nature that do not disturb surrounding residents and have no requirement of special services should be added to the list. This new work culture would bring associated demand for food joint, cafes, stationery shop, etc. ये जो पैसेज है इससे आपको पता चला कि हम वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, उसके बेनिफिट क्या है और उसके लॉसेस क्या हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 जो है वो बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन आइडिया बिहाइंड द पैसेज। इस पैसेज के पीछे का मेन आइडिया क्या था, तो वर्क फ्रॉम होम इज द न्यू नॉर्मल, वर्क फ्रॉम होम विल रिजल्ट इन शटिंग डाउन ऑफ बिग बिल्डिंग्स, वर्क फ्रॉम होम culture will result in systematization of city planning and development. More professionals should be included in the work from home list. इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वर्क फ्रॉम होम जो है कल्चर जो है वो रिजल्ट कर सकता है इन अ सिस्टमेटाइजेशन ऑफ सिटी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। हम दूसरे एरिया पे भी काम करेंगे, ये बात आपके पैराग्राफ से क्लियर होती है। और यहाँ पे जिसमें ये कहा गया कि बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिनको हम ऐड कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज अबव। क्या हो सकता है, द वर्क फ्रॉम होम कल्चर इज नो चॉइस कल्चर, देयर इज लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिविटीज इन द वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो, द रूटीन कल्चर एज अपोज टू द वर्क फ्रॉम होम does not benefit the society in any way. Fourth option is all of the above. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वर्क फ्रॉम होम कल्चर इज अ नो चॉइस कल्चर। ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट आपके पैसेज से आंसर
मिलता है इसका। और अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पे ये बात कही गई है कि मेनी मोर प्रोफेशन ऑफ द सिमिलर नेचर दैट डू नॉट डिस्टर्ब सराउंडिंग रेजिडेंस एंड हैव नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेशल सर्विसेज शुड बी एडेड टू द लिस्ट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। Question number 23 is which of the following can be associated with the benefit of the new culture? क्या होगा? It will save the commute time. The city's land can be used more efficiently. Better distribution of the activities would be associated with safer street and public space as they would not go unused and hence have less likelihood of being used for the lawful activities. Fourth option है all of the above। इसमें देखिए कि जब हम पैराग्राफ पढ़ रहे थे तो हमारा ट्रैवल टाइम बचेगा, तो हम क्या कर लेंगे, टाइम को भी सेव कर लेंगे। इसके बाद से अगर हम ट्रैवलिंग वाला एरिया कम कर लेंगे तो हम उस प्लेस को यूज भी कर लेंगे। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिविटीज, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिविटीज भी हम कर सकते हैं। और यहाँ पे पब्लिक स्पेस को हम पीसफुली और सेफ्टी से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जो कि यूज नहीं होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वर्क फ्रॉम होम कल्चर इज अ सस्टेनेबल मेथड ऑफ बिजनेस एंड शुड बी एक्सटेंडेड टू प्रोफेशन। ठीक है, इसमें है आपका और विच ऑफ द फॉलोइंग वीकेंस द ऑथर्स आर्गुमेंट। इसमें से कौन सा ऑथर्स के आर्गुमेंट को वीक करता है? दैट इज not every type of profession fit in the work from home culture as different profession have different requirement and need different environmental and work space settings. Next है work from home impacts personal mental health। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो जो ऑथर ने अभी हमारे पास पैसेज था, जो पैसेज ऑथर ने लिखा उसके आर्गुमेंट को वीक करता है। बिकॉज ऑथर कहना चाहता है कि अगर हम वर्क फ्रॉम होम करें तो हम कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं, जबकि ये दोनों बातें हैं वो कहती हैं कि लॉस क्या होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, दैट इज which of the following weakens the author's argument that work from home culture will enable better city planning। ठीक है, इसमें बताता है कि कौन सा वीक करता है ऑथर्स आर्गुमेंट को कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो है वो बेटर प्लानिंग को इनेबल करेगा। डेवलपमेंट ऑफ को वर्किंग स्पेस विल फर्दर क्रिएट चाओस इन द टर्म ऑफ लैंड प्लानिंग। सिटी प्लानिंग इज नॉट ओनली अबाउट रिड्यूसिंग स्पेसेस, वर्क फ्रॉम होम विल ऑल्सो रिड्यूस टू द फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द एबव। इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वीक करते हैं ऑथर्स के आर्गुमेंट को। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ भी आपका कोविड पैंडेमिक से रिलेटेड है, बट इसमें हमारा जो बात किया गया है पैंडेमिक के टाइम पे हमने स्टडी प्लान को चेंज कर दिया था। जैसे कि हम ऑनलाइन क्लासेस लेने लगे थे और उसके बाद से उसमें बच्चों का क्या हो रहा था, बेनिफिट्स हो रहे थे, लॉस हो रहे थे, इस पे भी डिबेट था, उससे रिलेटेड है। वन ऑफ द बिगेस्ट casualties of the COVID-19 pandemic and resultant lockdown has been institutionalized education. Schools have been shut to prevent the spread of the and this has given way to online classroom। ठीक है, लॉकडाउन लगा और उसकी वजह से ऑनलाइन क्लासरूम हो गए। अ वेरी न्यू कंसेप्ट ऑफ इन द इंडिया फॉर द मोर sophisticated school. It is commendable how easily some educational institutions have moved classrooms all things to tools such as Zoom, Google Hangouts। कैसे क्लास हुए थे, तो स्टार्टिंग में सबके पास ऐप नहीं हुआ करते थे, तो वहां पे क्या होता था कि जूम होते थे, गूगल हैंगआउट होते थे, माइक्रोसॉफ्ट टीम, बट देयर आर सम स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट ऑनलाइन। द ऑनलाइन क्लासेस whatever the enabling technology is only as good as the teacher and the ability of the student to grasp the new teaching technique. One of the teachers felt students are actually more responsive
and active in online classroom compared to when they are in physical one. This should be because this is a new concept and they are excited to explore it with the teachers. They also don't get distracted by their deskmates, which frequently happens in the regular class. Teachers do find the absence of blackboard a disadvantage and network connectivity. ब्लैकबोर्ड नहीं हुआ करते थे. दूसरी बात यह है कि बड़े बच्चों की तरह छोटे बच्चों को भी क्या होता था, लेक्चर सुनने पड़ते थे. नेक्स्ट है कि ये भी एक एडवांटेज था. दूसरा था कि नेटवर्क कनेक्टिविटी जो थी वो कांस्टेंट नहीं रहती थी और वो इसके वजह से क्या होता था कि प्रॉब्लम क्रिएट होती थी. We miss the clarity that Blackboard give us. We are kind of making do with the virtual whiteboard of Zoom. Sweta Kawatra, ये जो थी एक पेरेंट है who teaches in the New Delhi school, highlights that many students have not been able to take the advantage of the virtual platform because they do not have a suitable device at home or lack of good internet connection. It has its own share of disadvantage too. Too much screen time and can be perilous for health. Prolonged online session can be overwhelming and may lead to problem related to the vision, body posture, sleep disorder. कवात्रा हैट्स. ठीक है, इनके अकॉर्डिंग कहना क्या था कि जो ऑनलाइन क्लासेस थी उसके बहुत सारे ड्रॉबैक थे. अब आते हैं क्वेश्चंस पे. व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज अबव? इसमें आपका सेंट्रल आइडिया क्या है पैसेज का? फर्स्ट ऑप्शन है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन वाज मच बेटर देन द करंट ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम. ठीक है. सेकंड है institutionalized education cannot be replaced by any other system of the education. And third option is virtual classroom teaching is a sustainable approach to the education in the modern time. D है none of the above. इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज none of the above. ऊपर का जितना भी पैराग्राफ हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग ये जो है वर्चुअल क्लासरूम की बात कर रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की बात नहीं कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज एवं कौन सा नहीं इन्फर्ड कर सकते? वर्चुअल क्लासरूम टीचिंग इज अ सस्टेनेबल अप्रोच टू द एजुकेशन. ठीक है. वर्चुअल क्लासरूम टीचिंग कॉज हेल्थ प्रॉब्लम. नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम हैज इट्स एडवांटेज. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वर्चुअल क्लासरूम टीचिंग इज अ सस्टेनेबल अप्रोच टू द एजुकेशन. ये हमारे पैराग्राफ से क्लियर होता है कि हमारा जो वर्चुअल क्लासरूम है वो क्या करता है, हम सस्टेनेबल अप्रोच रख सकते हैं एजुकेशन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लिसिट assumption in the observation that students are more active and responsive in online classroom as compared to the that of in physical class. ठीक है. इसमें हमने पैराग्राफ में देखा कि ऑनलाइन बच्चे जो होंगे, जो सेकंड टीचर थी कवात्रा, उनका कहना था कि बच्चे जो थे वो मोर एक्टिव थे, रिस्पॉन्सिव थे. तो यहाँ पे क्या था, स्टूडेंट आर नॉट सीरियस वाइल स्टडिंग इन द फिजिकल क्लासरूम. सेकंड है ऑनलाइन क्लासरूम इनकलकेट मोर इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट टुवर्ड्स स्टडीज देन द फिजिकल क्लासरूम. नेक्स्ट है स्टूडेंट डोंट लाइक फिजिकल क्लासरूम एट ऑल. स्टूडेंट स्लिप इन फिजिकल क्लासरूम. ठीक है. इसका आपका जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है 128 का, वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब ओनली 1 and 2. मतलब स्टूडेंट जो थे वो सीरियस नहीं होते हैं, बिकॉज जब हम फिजिकल क्लासरूम की बात करते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं. जैसे कि हमारा डेस्कमेट होता है जिससे हम बातें करने लगते हैं, या फिर हमारा डाइवर्जन हो जाता है, या फिर हम ये भी देख लेते हैं कि बाद में उससे बात कर लेंगे, या फिर नोट्स चेंज कर लेंगे. नेक्स्ट है कि ऑनलाइन क्लासरूम जो होता है वो ज्यादा इंटरेस्ट क्रिएट करता है, बिकॉज ये स्टूडेंट्स के लिए नया था और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही बड़ी बात थी कि फोन मिलना और फिर उसमें एजुकेशन लेना, तो ये ऑलरेडी उनके लिए इंटरेस्टिंग था. नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज अबव? क्या हो सकता है? देयर इज अ डिवाइड इन ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ द ऑनलाइन. ठीक है.
ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इज गोइंग टू रिप्लेस द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम। थर्ड है, द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम इज नॉट एट ऑल perilous for the health of students। ऑप्शन डी है, दैट इज ऑल ऑफ द above। ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। और ये क्यों है कि इसकी क्या मेरिट है क्या डिमेरिट है, ये पर्टिकुलर पर्सन पे डिपेंड करता है, बिकॉज जिसके पास जैसी प्रॉब्लम रही होगी उसके लिए वो बात डिमेरिट होगी, और जो भी बेनिफिट्स को कवर कर रहा होगा उसके लिए वो मेरिट का काम कर रहा होगा। तो ये हम एक इंसान के ओवरव्यू से नहीं डिसाइड कर सकते। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज consider this statement: virtual education provides for various online seminars opportunities to interact with the learned expert pro bono education classes for students across the India irrespective of their economic status and background। which of the following statement weaken the statement? ठीक है, इसमें से कौन सा वो स्टेटमेंट है जो ऊपर के स्टेटमेंट को वीक कर रहा है? Many students in remote areas do not have access to the internet facility। next है, many students in the rural areas do not have device to take advantage of the virtual classroom। next है, online seminar and pro bono classes are not interesting and do not cater to the need of the student। ठीक है, इसके बाद आता है फोर्थ, the mobile phones data package to access such heavy online content are not enough and participation in such events involve costly data package which is dependent upon the economic status of the student। आपका जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका अगर हम देखें कि ये किसे वीकन कर रहा है तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1, 2 and 3, सेकेंड ऑप्शन इज दैट इज थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड ऑप्शन है 1, 2 and 4। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, वो इस वजह से क्योंकि ये जो फर्स्ट है, सेकंड और फोर्थ, ये रीजन सही है कि ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं उनमें क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं और वो बच्चों को फेस करनी पड़ी थी ड्यूरिंग कोविड टाइम। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेशन जो यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद हम और भी क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे आपसे, और हमारा जो क्लैट का बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें अगर आपको अभी एडमिशन लेना है तो इसमें 40% डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।